So good morning everyone. Today we are going to do some more questions from the semester 2 integral calculus, and our today's question is from the chapter reduction formula. As we have done lots of problem from the reduction formula, but this one is one of the important question from that topic. So the question is like if n is a positive integer greater than 1, then prove that. You have to prove here the value of the 0 to pi by 2. Fine. Cos n minus 2x sin nx dx is equals to 1 divided by n minus 1. So this is the question, girls. So see, while solving this question, you have to think about the term. What the term is given in your integral. The term given in the integral is cos to the power and then multiple of sine into theta. मतलब multiple of theta. So now we just remind a formula which we have done in the earlier classes. Okay, so I'm not going to prove that one, and you also not have to prove that formula here to solve this question. Only you have to use that formula. So now I'm writing here. We know that integration of 0 to pi by 2 cos mx sin nx dx. देखो both are not same. यहाँ n minus 2 है, यहाँ पे nx है. That is why I am taking m and then n. Okay. And this is value is a 1 divided by m plus n plus m divided by m plus n I m minus 1 comma n minus 1. ये होता है फॉर्मूला. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है. तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग और लिख सकते हैं. आई m comma n, and this is what 1 by m plus n plus m divided by m plus n into I m minus 1 comma n minus 1. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फार्मूला से क्वेश्चन कर रहे हैं, और आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है. इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, देन प्रूव दैट 0 to pi by 2 cos n minus 2x sin nx dx is equals to 1 by n minus 1. So by seeing this problem, one thing which we remind in our mind is that this is of the formula cos mx sin nx dx. Okay, here I am not taking both the same one n or n, because here it is n minus 2 and here it is n. That is why I have taken it as a cos mx into sin nx. और जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था पहले, तो इसके वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड किया था एज 1 बाई m प्लस n प्लस m डिवाइडेड बाई m प्लस n I m minus 1 comma n minus 1 के फॉर्म में. So I'm writing this value here in the form I m comma n is equals to 1 by m plus n plus m divided by m plus n I m minus 1 comma n minus 1. Okay, so now I'm going to put this value as equation number 1. Now भैया के पास जाओ. Now next what we have to find, girls. So next we are just write this value as we want to evaluate. तो हमें क्या इवेल्युएट करना है गर्ल्स? देखिए यहाँ पे फॉर्मेट कैसा है. अगर इसकी फॉर्मेट की हम बात करें तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं आई एन माइनस टू कॉमा एन के फॉर्म में. इज इट क्लियर? और इसी की वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है. तो अब हम लिख रहे हैं नाउ वी वांट टू इवेल्युएट आई एन माइनस टू कॉमा एन. गर्ल्स ये क्यों लिखा, सभी को समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Now आई एन माइनस टू कॉमा एन. देखो क्या करना होगा, इस m को अगर हम रिप्लेस कर दे n माइनस टू से, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो आई एन माइनस टू कॉमा एन हो जाएगा. m को रिप्लेस कर देंगे n माइनस टू से इन इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ राइट साइड में वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो n माइनस टू प्लस n प्लस n माइनस टू डिवाइडेड बाई n माइनस टू प्लस n आई n minus 2 minus 1 comma n minus 1.
ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते। कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, देखो 2n माइनस 2 आ रहा है यहाँ पे, ये कैंसिल करेंगे तो 2n माइनस 2 होगा। 2 को कॉमन निकाल ले रहे हैं, लिख रहे हैं n माइनस 1। ओके, प्लस यहाँ हो जाएगी n माइनस 2। फिर नीचे में देखो वैसे ही यहाँ पे फिर आएगा 2n माइनस 2, तो आई एम राइटिंग इट लाइक 2 टाइम्स n माइनस 1। ओके, एंड हियर इट इज व्हाट, I n माइनस 3 n माइनस 1। ओके गर्ल्स, इज इट क्लियर गर्ल्स, सभी को समझ में आया यहाँ पे? Now next Yes, what I ma'am. have to do, I have to find the value of I n minus 3 n minus 1. So now again what I am going to write this value girls, क्या लिख सकते हैं इसको, देखो अब I n minus 2 3 n minus 1 की वैल्यू को क्या लिखेंगे, इसके वैल्यू को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय, तो ये वाली वैल्यू पूरी एज इट इज आएगी। ठीक है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस वाले वैल्यू में चेंज करना होगा, फिर क्या n को चेंज करेंगे और यहाँ से इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे n की वैल्यू को n माइनस 3 और n की वैल्यू को n माइनस 1, ये कर सकते हो। या तो फिर इस वैल्यू में आपको क्या चेंज करना होगा, इस वैल्यू में मुझे वैल्यूज डालनी होंगे n को -2, मतलब -2 हमें यहाँ पे करना होगा -1 में पुट करने के लिए। तो अगर -1 करेंगे तो देखो n -2 -1 -3 मिल जाएगा, और -1 करेंगे तो -1 मिल जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू हमें मिल गई बाय टेकिंग n को हम लोग क्या कर देंगे, n -1 अगर चेंज कर देंगे इस वैल्यू में तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चेंज करने से वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, व्हाट वी गेट द वैल्यू गर्ल्स, 1 बाय n को किससे चेंज कर रहे, n यहाँ n -3 हो जाएगा ना। Yes, ma'am. अच्छा, अगर इससे नहीं समझ में आया तो इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 देखो, हम कह रहे हैं अब यहाँ m के जगह पे क्या आ गया, n -3, n की जगह पे क्या आ गया, n -1। तो आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन नंबर 1। देखो यहाँ क्या आएगा, n -3 प्लस n, ओके, प्लस n -3 बाय n -3 प्लस, अब ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है -1 में, तो यहाँ हो जाएगा ये n -1 में। ओके, एंड हियर इट इज I n -3 -1 n -1 -1। So what this value goes, this is the equation of the form। देखो अब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2n -4, तो 2 को कॉमन लेंगे तो n -2 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे प्लस साइन हम दे देते बीच में, ये कितनी हो जाएगी n -3 डिवाइडेड, फिर ये आ जाएगी 2, देखो सेम वही चीज, 2n -4 है तो 2 को कॉमन लेके n -2, और यहाँ आ गया n -4 n -2। ये चीज दिख रहा है कल सभी को, n -4 n -2। डाउट है किसी को तो पूछिए गर्ल्स, कोई डाउट? No, ma'am. इज देयर एनी डाउट? नो। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को कहाँ डालेंगे हम लोग, इसके प्रीसीडिंग टर्म में पुट करेंगे। तो जब प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो वैल्यू कैसा आ रहा है, 3 है तो 4 आएगा। अब जब इसके बाद वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे ना तो वो 5 आएगा, 1 है 2 है तो इसके बाद वाली वैल्यू किससे आएगी, 3 में आएगी, तो लिखते हैं सिमिलरली। नाउ आई एम गोइंग टू राइट सिमिलरली। ओके, Similarly, I n -4 n -2 कितना हो जाएगा गर्ल्स, यू गर्ल्स जस्ट टेल मी गर्ल्स। देखो n -4 n -2 m प्लस n है तो साइड में कहीं पे करते हैं m सॉरी 4 प्लस n -2, मतलब कितना आ गया 2n -6, मतलब हमें मिल जा रहा है 2n -3। देखो n -1 n -2 अब आ रहा है n -3, 1/2 into n -3। ठीक है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, n
n minus by 2 into n minus 3. okay, and then Okay, I and then I n minus 5 5 n n minus minus 3. n minus okay, and so on and so on. तो इस तरह से करते करते गर्ल्स हम लोग जब लास्ट टर्म में पहुंचेंगे तो देखो हम लोगों के पास टर्म कैसे मिलेंगी। जो भी टर्म हमें मिलेगा एट लास्ट, वहां पे एक चीज आप ध्यान देना कि ये वाली वैल्यू जो है, अगर मान लो 5 माइनस 5 हम करते तो ये 5 माइनस 5 जीरो हो जाती, बट 5 माइनस 3 से यहाँ पे कितना बच जाता, यहाँ पे हमें 2 बच जाता। मतलब वैल्यू कैसा हो जाता, आई 0,2 एट लास्ट में ये टर्म हमें बच जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? इज इट क्लियर गर्ल्स? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, मैम एक बार फिर से बताइएगा ना। देखो अब जैसे इसके नेक्स्ट टर्म निकालेंगे फिर नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो हम उतने टर्म से आप नहीं समझते। हम जस्ट एक चीज सोचो कि अगर मेरे पास 7 टर्म होता, मान लो 7 टर्म्स होते, तो फिर एक बार और हम आगे प्रोसीड करते। तो यहाँ पे अब क्या होता, देखो आगे जाते हम, n का वैल्यू 7 था तो यहाँ पे क्या मिलता हमें, हमें मिलता आई n माइनस 7 और n माइनस 5 मिलता, यही मिलता। बट क्योंकि हम अगर n को 7 लेके चलते तो ये क्या हो जाता, आई 7 माइनस 7 और 7 माइनस 2, मतलब लास्ट टर्म जो हमें मिल जाता वो हो जाता 0,2 के फॉर्म में। जस्ट समझिए इसको कि लास्ट टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे जो भी लास्ट टर्म हमारा आता गर्ल्स, वो डिपेंड करता कि आपका यहाँ पे फिर n के टर्म में ही आएगा, बट क्योंकि n माइनस n हम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टर्म लास्टली आएगा वो हो जाएगा आई 0,2 के फॉर्म में। ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आ रहा है क्या लिख रहे गर्ल्स? रिप्लाई करिए। यस मैम। यस ओके, तो अब सिमिलरली करके हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए टर्म्स को हम फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे हम ये दिखाएंगे आपको। ओके, नाउ अप टू डॉट डॉट डॉट, फाइन। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, एक एक करके वैल्यू को प्रीसीडिंग टर्म में पुट कर रहे हैं। जब ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो एज इट इज आएगा, बट ये देखो यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा, आ रहा है ना, ये पूरी टर्म मल्टीपल में आ जाएगा। तो वैल्यू को हम अब प्रोसीड करते हैं, देखो इस तरह से। देयरफॉर इंटीग्रेशन का जो पूरा का पूरा वैल्यू है, मतलब कहां से इंटीग्रेट, ये हम निकाल रहे थे क्या, आई n माइनस 2 कॉमा n की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से। पहला वैल्यू हमें मिला है 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस, फिर क्या मिला था n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n माइनस 1। यहाँ पे था आई n माइनस 3 n माइनस 2, तो आई n माइनस 3 n माइनस 2 की वैल्यू मेरे पास तो है ये वाली वैल्यू, तो इसको हम पुट कर रहे हैं कहाँ पे, इस प्लेस पे पुट कर रहे हैं। तो जब इस प्लेस पे पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा n माइनस 2 बाई 2 टाइम्स n माइनस 1। ओके, सॉरी 1 होगा ना पहले, देखो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 बाई 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू आई n माइनस 5 n माइनस 2, ऐसा मिलेगा। अब फिर क्या करेंगे, फिर नीचे आएंगे, 4 है ये, सॉरी ये 4 है, तो अब फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे, यस बोलिए। n माइनस 3 बाय 2 इंटू n माइनस 1 ब्रैकेट में n माइनस 2 है, n माइनस 2 है ये, n माइनस 3 बाई 2 n माइनस 2 है ये, 2 n माइनस 2 या 2 है ना, n माइनस 4 n माइनस 2 ऐसा आएगा, और यहाँ पे 2 है, ठीक है, अभी ठीक है यहाँ पे। अब फिर इसकी वैल्यू को पुट करते तो क्या कैसा आएगा, 1 बाई 2 टाइम्स n माइनस 1। देखो अगर इसको हम सॉल्व करके लिख ले यहाँ पे तो ये वैल्यू कैसा होगा, 1 बाई 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस ये देखो n माइनस 2 है, n माइनस 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बाई 2 का स्क्वायर n माइनस 1, हाँ प्लस
यहाँ पे फिर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई है तो n-2 फिर कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या n-3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर n-1 और ये हो जाएगा n-4 n-2 के फॉर्म में ऐसे। ठीक है, अभी समझ में आया है गर्ल्स? इतना आ जाएगा। अब देखो फिर यहाँ से n-4 वाले इस वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे, फिर यहाँ इसके जगह पे रखेंगे, तो फिर हमारा टर्म्स आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं फिर क्या मिलता है। अब हमें मिल जाएगा +1/2 स्क्वेयर n-1 आ गया, प्लस यहाँ हो जाएगा n-3/2 स्क्वेयर n-1। अब इसकी वैल्यू पुट करते तो ये है 1/2 n-3 प्लस n-4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स n-3 i n-5 n-3 के फॉर्म में ऐसा। अब फिर इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, तो क्योंकि हमें एक समझ में आ जा रहा है कि कैसा आगे का हमारा फॉर्मेशन होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अब उस फॉर्मेशन को डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमें वैल्यू क्या मिलता है। ओके, तो बताओ अभी वैल्यू हमारा जब 5 और 3 आ गया, अब इसके बाद इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख रहे हैं 1/2 टाइम्स n-1 1 देखो 2 स्क्वेयर n-1। अब देखो यहाँ पे n-3 कैंसिल होगा, 1/2 क्यू n-1 आएगा, प्लस n-3 n-3 कैंसिल होगा, आएगा n-4/2 का क्यू n-1 i n-5 n-3। कल समझ में आ रहा है कैसा कॉन्सेप्ट जा रहा है। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का 4 आ जाएगा, और फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। इस तरह से करते करते ये कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग ऐसे करके डॉट कर देते, देखो तो हम लोग फाइनल वैल्यू जो इसकी लिखेंगे वो कैसे होगा जाएगा, देयरफॉर i n-2 n को अब लिख सकते हैं 1/2 n-1 1/2 स्क्वेयर n-1 1/2 स्क्वेयर के बाद 2 क्यूब n-1 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस ये हो जाएगा 1/2 की पावर n-2 n-1। देखो ध्यान से देखो, जब ये वाली टर्म यहाँ पहुंचे हैं हम लोग, तो देखो जब 5 है यहाँ पे तो यह कितना है, q है। ठीक है, और इसके साथ में q आ रहा है, तो जब लास्ट टर्म हम लोग पहुंचेंगे तो देखो हमेशा क्या है, इससे 2 कम, 5 है तो ये 3, मतलब ये पीछे वाली टर्म 3 है तो यहाँ पे 3। ओके, तो जब n माइनस हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर n-2 के फॉर्म में एंड देन n-1, और टर्म क्या हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 की पावर n-2। ठीक है, समझ में आ रहा है गर्ल्स कैसे, 4 है तो एक कम -1 तो 3 आ गया, n-1 ऑलरेडी है तो इससे और एक कम तो -1 करेंगे तो कितना आ गया, n-2 आ गया, तो यहाँ पे n-2 देखो n यहाँ पे 4 है तो ये 3 है, इसके पहले क्या था देखो 3 था तो ये 2 था, इसके पहले ऊपर चलते देखो जब ये 3 था तो यहाँ पे 2 की पावर 2 होगी, देखो ये 3 था तो 2 की पावर कितनी थी, 2 थी। तो इससे हमें एक आइडिया समझ में आ रहा है कि जब हम n-1 टर्म्स को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है तो n-1 लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 2 की पावर n-2 into n-1। ओके, and what about the last term girls, n-2 n-2 here it is n-2 ना, देखो देखो n-3 था तो n-3 आया, यहाँ पे 1 था, इस तरह से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये n-2। ओके, अब वैल्यू कितना हो जाएगा i के साथ 0,2 0,2। समझ में आ रहा है आप सभी को, समझ में आया ये टर्म कैसे लिखे हैं। Yes, ma'am. ओके, and now we have to find this i 0,2। अब इसे फाइंड करना है हमें, तो निकालते हैं। सो दिस वैल्यू इज व्हाट, अब क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से बताओ, n-1 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ओके n-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ तक के देखो टर्म्स में हमें n-1 कॉमन मिल जाएगा। तो अगर n-1 कॉमन लेते हैं तो वैल्यू कैसा प्रोसीड कर, देखो 1/2
1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, अप टू डॉट डॉट 1/2 टू द पावर n माइनस 2। यहां तक तो मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद की पावर n माइनस 2 n माइनस 1, ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस 1/2 का पावर n माइनस 2 इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे ये n कैंसल, ये +1 हो गया, +1 हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n माइनस 2 हो गया, ठीक है। और ये है n माइनस 2 की वैल्यू, तो n माइनस 1 क्योंकि हमने यहाँ पे बाहर ले लिया है, तो n माइनस 2 2 टू द पावर n माइनस 2, ओके, ये n माइनस 1 होना चाहिए गर्ल्स। आई थिंक दिस शुड बी n माइनस 1, वेट आई जस्ट सी, n माइनस 3 2 स्क्वायर n माइनस 1, यहाँ पे ये आ गया था 2 स्क्वायर n माइनस 1, तो ये 2q n माइनस 1 था। Thus this should be n minus 1. This will never be the n minus 2 here. Okay, just make it correct. This must be n minus 1. Here this value must be n minus 1. It is your n minus 1. Because you see, while writing this value, we have this term as, जब मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये टर्म के साथ n माइनस 1 ही आता है, इसीलिए यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 2 जब लिखा है तो ये ब्रैकेट में n माइनस 1 ही होगा और ये I0,2 आएगा। अब देखो यहाँ से n माइनस 1 को अभी बाहर प्रोसीड कर रहे हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू मिला हमें ये हो गया 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 1/2 के पावर n माइनस 2, यहाँ से ये +1 आ गया, n माइनस 1 ऑलरेडी बाहर है, इसीलिए ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू π/2। अब देखो 0 और 2 है तो कितनी हो जाएगी बताओ, साइन की पावर क्या है फॉर्मूला, देखो ऊपर 0 2 का मतलब क्या, 0 2 का मतलब क्या, यहां से 0 तो cos 0x मतलब 1 और 2 का मतलब sin 2x हो जाएगा। तो इसी वैल्यू को आप लोग यहाँ पे नीचे पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos 0x sin 2x dx एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ओके गर्ल्स, यहाँ तक सभी को समझ में आया, कहीं कोई डाउट है अभी तो बोलो। Now I am taking this one as like 1/2q up to dot dot 1/2 to the power n minus 2. Okay, and now thereafter I'll use this capital bracket here and now plus 1/2 to the power n minus 2. Now what this value is? Sin 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? What is sin 2x? Cos 2x divided by 2 with the minus sign and having 0 to π/2 and then this bracket. Okay girls, is it clear now? Are you all okay with this value? Yes, ma'am. Okay, so shall I move to the next step? Okay. See, therefore I n minus 2 comma n, ये value कितना आ गया, तो 1/n minus 1 is common. Now we have a GP series 1/2 1/2 square 1/2 cube up to dot dot 1/2 to the power n minus 2, this one. इसके बाद हम लोगों को मिला था प्लस 1/2 to the power n minus 2 and thereafter we have in the bracket cos 2x का पावर था, तो यहाँ पे है minus cos 2x divided by 2 0 to π/2 and thereafter this capital bracket. Now 1/n minus 1, what this value is, GP है, कैसे निकालते हैं इसको बोलो, 1/2 है ना, इस 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा 1/2 1 minus 1/2 to the power n minus 2 and then divided by 1 minus 1/2. Is it clear with this formula girls? Now plus 1/2 to the power n minus 2. Now cos 2 π/2. So here I have a 1 while putting this value is 0. What we have, cos 0 is 1. So again I have 2 divided by 2. So this value is your 1. So finally I'm living with the value 2 to the power n minus 2 only. Okay.
So now, next what I have, 1 by n minus 1. Now solving this value, what you get the value here is 2 minus 1, 1 by 2, 1 by 2, cancel out. So here I have 1 minus 1 by 2 to the power n minus 2 plus 1 by 2 to the power n minus 2. Now again this and this is getting cancelled, so I am leaving with only 1 by n minus 1. Is it clear girls? तो हम लोगों को फाइनली जो वैल्यू चाहिए था वो मिल गया. ये वैल्यू क्या है? Therefore integration of 0 to pi by 2 cos n minus 2 sin x sin nx dx, and this is equals to what? 1 divided by 1 minus n. Hence we have proved. तो आज के लिए इतना ही. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे. Whatever you have a doubt, questions, girls, just put it in the WhatsApp or in the YouTube so that I'll move to the solve the next questions. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.